آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، شیئر اور کمنٹس کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم۔ ہم یہاں پر اسکالرشپ کے پریکٹس کوشچنس لے رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو اسے بغور مشاہدہ کر کے حل کرنا ہے۔ سر سید احمد خان اردو پرائمری اسکول، عالمگیر، احمد نگر۔ سالونگ پزلز اینڈ ریڈلز ود دا گیون کلوز، دی ہوئی ہدایتوں کے مطابق مدد سے معمے اور پہیلیاں حل کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے، سلیکٹ دا لیٹر فرام دا گیون آپشنز اور ریپلیس دا اسٹار دیٹ میک ٹو میننگ فل ورڈز۔ دو بامعنی الفاظ بنانے کے لیے اسٹار کی جگہ مناسب حرف منتخب کیجیے۔ یہاں پر STA اسٹار دیا ہوا ہے اور نیچے OAD دیا ہوا ہے۔ آپشنز ہے نمبر 1 D، نمبر 2 R، نمبر 3 L اور نمبر 4 G۔ اگر ہم اسٹار کی جگہ حروف DLG لکھنے پر دونوں الفاظ بامعنی حاصل نہیں ہوتے۔ حرف R کا استعمال کرنے پر ہمیں اسٹار اور روڈ الفاظ حاصل ہوتے ہیں جو بامعنی ہے، اس لیے متبادل 2 جواب ہے۔ کوشچن نمبر 2، I am a vegetable, I am round, if you cut me, I'll make you cry, who am I؟ میں ترکاری ہوں، میں گول ہوں، آپ مجھے کاٹے تو میں آپ کو رلاتا ہوں، میں کون ہوں؟ آپ لوگوں کو پہچاننا ہے۔ اس کے آپشنز ہیں نمبر 1 گارلک، نمبر 2 پمکن، نمبر 3 اونین اور نمبر 4 چیلی۔ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ہم اونین کاٹتے ہیں یعنی پیاز کاٹتے ہیں تو ہمارے آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اس لیے یہاں پر نمبر 3 اس کا جواب ہے اور ہم نمبر 3 والے دائرے میں رنگ بھریں گے۔ کوشچن نمبر 3، واٹ از ان فروٹ بٹ ناٹ ان این ایپل؟ دا کنگ ہیز اٹ بٹ ناٹ دا پیپل، واٹ از اٹ؟ یہاں پر ہمیں ایسے لفظ کو تلاش کرنا ہے جو فروٹ میں ہے لیکن ایپل میں نہیں، جو کنگ میں ہے لیکن پیپل میں نہیں۔ فروٹ میں ہے، فروٹ اور کنگ دونوں میں مشترک حرف آئی ہے اور ایپل اور پیپل میں نہیں ہے، اس لیے متبادل 2 جواب ہے۔ یہاں پر جو دیے ہوئے ہیں آپشنز، اس میں ہمیں 2 والے دائرے میں رنگ بھرنا ہے۔ کوشچن نمبر 4، I have a face but no eyes, I have 2 hands, I wipe my face all the day, what am I؟ مجھے چہرہ ہے لیکن آنکھیں نہیں ہیں، مجھے 2 ہاتھ ہے، میں دن بھر اپنا چہرہ پوچھتا رہتا ہوں، کون ہوں میں؟ یہاں پر گھڑی میں گھنٹہ سوئی اور منٹ سوئی ہاتھ جیسے 2 حصے ہیں، دونوں سوئیاں دن بھر گھومتی رہتی ہیں، اس لیے اس پہلی کا جواب گھڑی یعنی کلاک ہے، اس لیے متبادل 3 جواب ہے، اس لیے ہم 3 والے دائرے میں رنگ بھریں گے۔ کوشچن نمبر 5، وچ لیٹر ول یو سلیکٹ ٹو کمپلیٹ دا ریڈر ٹو فارم 2 میننگ فل ورڈز؟ 2 بامعنی الفاظ بنانے کے لیے آپ خالی جگہ میں کون سا حرف استعمال کریں گے؟ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو URM کا استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو کوئی بھی بامعنی لفظ نہیں بنتا، لیکن اگر ہم O کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر 2 بامعنی الفاظ بنتے ہیں، ایک فرام اور دوسرا ڈور، اس لیے یہاں پر نمبر 2 اس کا جواب ہے، اس لیے ہم 2 والے دائرے میں رنگ بھریں گے۔ کوشچن نمبر 6، چوز پراپر سیٹ آف لیٹرز ٹو کمپلیٹ دا نیمز آف فروٹس۔ پھلوں کے نام مکمل کرنے کے لیے حروف کا مناسب گروہ منتخب کیجیے۔
यहाँ पर आप लोगों को ग्रो दिया जा रहा है, बगौर इसका मुशाहिदा करना है, ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद हमें तय करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर हम मुशाहिदा करते हैं 1 नंबर वाले चौकोन की लाइन में, तो यहाँ पर ANGO अगर हम मुशाहिदा करते हैं तो यहाँ पे मैंगो ये लफ्ज़ बनता है, इसलिए ऑप्शन में हमें M कहाँ है ये देखना है। ज़रूरी नहीं कि सभी ऑप्शन में M ना हो, कभी कभार ही ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे हमें बगौर मुशाहिदा करना है। यहाँ पे हमारे पहले समझ में आ गया कि M पहला आने वाला है। दूसरा जो लफ्ज़ बनने वाला है यहाँ पे ANANA, यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ बनेगा बनाना। और तीसरे वाले चौकोन वाले सुतून में अगर हम जाएंगे, ग्रो में अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एप्पल बनेगा। और चौथे वाले सेट में अगर हम जाते हैं तो PEA, यहाँ पे पियर बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें पहला M, दूसरे में B, तीसरे में P और चौथे में R, ये हर्फ आने पर ही यहाँ पर अल्फाज सही बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे। तो 2 नंबर वाला जवाब यहाँ पर सही है, इसलिए 2 वाले दायरे में हम रंग भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन प्लेस ऑफ स्टार विल बी यूज्ड टू फॉर्म 2 मीनिंगफुल वर्ड्स। स्टार की जगह कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे तो 2 मानी अल्फाज हमें हासिल होंगे। यहाँ पर आप लोगों को SH स्टार LL दिया हुआ है और दूसरे वाले इसमें B स्टार और ACH दिया हुआ है। हमें स्टार की जगह ऐसा हर्फ लेना है जिससे बाबानी 2 अल्फाज बने। यहाँ पर अगर हम U ले और O ले और L यानी UOL लेने पर कोई भी बामानी लफ्ज़ यहाँ पे नहीं बनता है। अगर हम यहाँ पे ई रखते हैं तो यहाँ पर बामानी लफ्ज़ बनता है बीच और शेल। इसलिए हम 4 नंबर वाले दायरे में रंग भरेंगे। इसका सही जवाब नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द करेक्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन प्लेस ऑफ स्टार टू फॉर्म 2 मीनिंगफुल वर्ड्स। 2 बामानी अल्फाज हासिल करने के लिए स्टार की जगह मुनासिब हर्फ लिखिए। यहाँ पर अगर हम मुशाहिदा करते हैं तो स्टार की जगह H की जगह हमें एक ऐसा हर्फ लेना है जिससे 2 बामानी लफ्ज़ बने। तो यहाँ पर OUNDUGAR ऐसा हर्फ लेकर हमें अल्फाज बनाने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें BMR लेने पर हमें कोई भी बामानी लफ्ज़ हासिल नहीं होता है, और अगर हम S रखते हैं तो यहाँ पर बामानी अल्फाज हमें हासिल होते हैं। इसलिए यहाँ पर नंबर 2 में हम रंग भरेंगे, क्योंकि S रखने पर हमें शुगर और साउंड ये अल्फाज हासिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, I have a hole in my heart. I am made of metal. I guard your door. Who am I? मेरे दिल में सुराख है, मैं धात का बना हुआ हूँ, मुझे खोले बगैर कोई घर में दाखिल नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ? ऑप्शन दिए हुए हैं डोर, ब्लॉक, लॉक और विंडो। हमें पता है कि हमारी घर की रखवाली लॉक करता है, इसलिए यहाँ पर सही मुतबादिल नंबर 3 होगा। इसलिए हम नंबर 3 वाले दायरे में रंग भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड रिलेटेड टू रेलवेज। हुरूफ को दोबारा तरतीब देकर रेलवे से मुतालिक बाबानी लफ्ज़ बनाना है। यहाँ पर हुरूफ को बेतरतीब दिया हुआ है OTASTIN। अगर हम इसे सही तरतीब में दें तो ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है टोस्टीन कोई लफ्ज़ नहीं है जहाँ पर हम स्टेशन से रेलवे से ताल्लुक़ रखता हो। यहाँ पर सही लफ्ज़ स्टेशन है, क्योंकि यही रेलवे से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पर सही मुतबादिल नंबर 2 है, तो हम 2 नंबर वाले दायरे में रंग भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, टू मेक 2 मीनिंगफुल वर्ड्स राइट द करेक्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन प्लेस ऑफ स्टार।
दो पामानी अल्फाज हासिल करने के लिए स्टार की जगह कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर हम अगर मुशाहिदा करते हैं तो RONNA और स्टार की जगह हमें लिखना है यहाँ पे CIAU 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम अगर C रखते हैं, A रखते हैं, U रखते हैं तो इससे कोई भी बामानी लफ्ज़ नहीं बनता है। और अगर हम यहाँ पर I रखते हैं तो यहाँ पर दो बामानी लफ्ज़ बनते हैं, आयरन और नेल, इसलिए सही मुतबादिल 2 है। क्वेश्चन नंबर 12, finds the hidden part of the body in the given sentence. The letters of the word are in a sequence. दिए हुए जुमले में छुपा हुआ जिस्म का वजू तलाश कीजिए। इस लफ्ज़ के हरूफ मुसलसिल है। अगर हम जुमला पढ़ते हैं दिस कैट इन अ बलून, तो बातरतीब यहाँ पर कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स कौन सा आया हुआ है? कैट तो कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है, एल्बो तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, नेल भी नहीं दिखाई दे रहा है, और नंबर 4 आइज़ है। तो अगर हम आइज़ यहाँ पे देखते हैं तो EYES, यहाँ पर आइज़ ये हमारा बॉडी पार्ट्स है, इसलिए नंबर 4 ये सही जवाब है। तो हम नंबर 4 वाले दायरे में रंग भरेंगे।